Hello everyone. Good morning and assalamu alaikum and subah bakhair and everything, all the greetings. I hope that you are all doing good. This is third unit of our course code 9058, that is classical novel. And in this third unit, we are particularly going to focus on the rise of English novel. So far, we have discussed the elements of the novel. We have discussed the history of novel, that what are the traditions or what are the things that led to rise of English novel. Now, this particular unit, it focuses on the rise of English novel, or what were the factors that were involved in rise of novel in England, a rise of novel in English literature. Okay, so the main things or the main headings that we are going to discuss is the rise of novel in 17th century, the origin, and prior to that we will discuss the origin of novel. Then we are going to discuss the rise or the height of novel in the 18th century. After that we are going to discuss the factors that influence the rise of English novel, and these factors, they include the industrial revolution, the decline of the romance and the drama, the rise of the middle class, mobile libraries, the printing press, and effects of the enlightenment, the people's desire to read more and more, and furthermore rise of novel as commercial fiction, कि किस तरीके से नावल ने as commercial fiction के तौर पे या कमर्शियल रिटन फॉर्म के तौर पे राइटर्स की लाइफ में किरदार अदा किया, यानी कि राइटर्स को रिच किया, और किस तरीके से ये चीज़ जो थी इसने नावल की, आप ये कहें कि इनडायरेक्ट पब्लिसिटी और उसको अरूज पर पहुंचाने में अपना किरदार अदा किया. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस की फीचर्स ऑफ 18th सेंचुरी नावल, यानी कि 18वीं सदी का जो नावल है इसके फीचर्स क्या हैं. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पायनियर इंग्लिश नॉवलिस्ट, यानी कि वो नॉवलिस्ट कि जिनको ये कहा जाता है कि इन्होंने अंग्रेजी अदब के अंदर नावल की बुनियाद रखी. डैनियल डेफो नाम सारे जो है वो ऑलरेडी आप इनसे वाकिफ हैं. डैनियल डेफो का नाम आया. सैम्यूल रिचर्डसन, हेनरी फील्डिंग, दे आर द founding fathers of English novel. Then we have Lawrence Stearns, and we are going to obviously talk about other important novelists such as John Bunyan and Oliver Goldsmith, and there were certain other people as well. And in the post 18th century novels, we are going to discuss various types of novels that were introduced into English literature. The novel of manners, historical novels by Sir Walter Scott, chronicle novels, Gothic novels, regional novels. I already mentioned in my previous lecture that Thomas Hardy is known as regional novelist, and Frankenstein by Mary Shelley is representative of the Gothic novel tradition. And furthermore, stream of consciousness novel. Okay, stream of consciousness novel. It was uh, I have read one. It is written by Virginia Woolf, and the title of the novel is To the Lighthouse. Okay, so these are the important topics that will be debated or that will be discussed, and that I will try my level best to make you understand all these things that I have mentioned in my outline. जी, तो अब जो हमारी डिस्कशंस हुई इस रिगार्ड में कि जी ओरिजिन ऑफ नावल के हवाले से और इंग्लिश नावल के हवाले से प्रीवियस यूनिट के अंदर, तो उसके अंदर एक चीज़ हमने इस्टेब्लिश की कि जो अंग्रेज़ी नावल है, जो इसका ज़हूर है या जो इसका ओरिजिन है, वो हम उसको ट्रेस करते हैं फॉर्मली, जो जिस चीज़ को हम नावल का नाम देते हैं वो इन बिटवीन 17th सेंचुरी, यानी कि 17वीं सदी के अंदर, और फिर 18वीं सदी के अंदर. ठीक है, यहाँ पर हम इसको एग्जैक्टली पिन पॉइंट करते हैं कि अंग्रेजी इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लैंड के अंदर जो नावल था उसका आगाज इस टाइम पीरियड में हुआ. लेकिन अब हमने ये भी ट्रेस किया कि नावल जो है बुनियादी तौर पर ये दूसरी फॉर्म ऑफ लिटरेचर, खासकर जो एपिक है, ये उसकी रिफाइंड फॉर्म. ठीक है, तो अब एपिक और नावल के बीच में ट्रांजिशन कैसे हुआ, यानी कि एप एपिक जो है वो किस तरीके से तब्दील होती हुई नावल की शक्ल इख्तियार कर गई. तो इसमें हमें देखना होगा
जो वर्क्स हैं टॉमस मैलोरी के, और फिर हमें वर्क्स देखना होंगे जेफरी चौसर के, कि इन लोगों ने एक अपना रोल प्ले किया प्रोज फिक्शन के अंदर। इन्होंने प्रोज फिक्शंस लिखी। टॉमस मैलोरी जो है उन्होंने मॉर्टी डी अर्थर, यानी कि वो जो किंग अर्थर की स्टोरीज हैं, किंग अर्थर एंड द राउंड टेबल, और उसका कोर्ट जो था, कि वो इंग्लिश रोमांसेस का उन्होंने जो है वो आगाज किया। ठीक है। चौसर ने, आल्दो उन्होंने कैंटरबरी टेल्स जो है वो उन्होंने पोइट्री की फॉर्म में लिखी, और हम उनके जो वर्क्स हैं लिटरेचर के, उनको हम क्लासिकल पोइट्री के अंडर या क्लासिकल पोइट्री के सिलेबस में पढ़ते हैं। लेकिन दो टेल्स ऑलरेडी मैंने जिक्र किया था प्रीवियस चैप्टर में, कि दो स्टोरीज जो हैं उनकी वो ऐसी हैं जो कि प्रोज फॉर्म में लिखी गई हैं। तो जो इंग्लिश प्रोज फिक्शन है उसकी बुनियाद अगर हम देखें तो हमें ज्यूफरी चौसर से मिलती है, क्योंकि ज्यूफरी चौसर की जो राइटिंग्स हैं, अगर आप उनकी पोइम्स भी पढ़ें तो उनके अंदर एक रियलिज्म का एलिमेंट मौजूद है। और जो मॉडर्न डे नावल है, जो आज का नावल है, उसका सबसे बड़ा फीचर ही रियलिज्म है, कि यानी कि वो रियलिस्टिक होता है अपनी नेचर के अंदर, कि हम उसको जब कहानी को पढ़ते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि ये बिल्कुल हकीकत पे मबनी कहानी है। ठीक है। तो जेफरी चौसर जिस तरीके से अपनी टेल्स के अंदर अपने टाइम पीरियड को, याद करें कि एक हमने फीचर पढ़ा था नावल का कि कंटेम्पोरेनिटी, तो वो कंटेम्प्रेरी टाइम पीरियड को एज इट इज डिस्क्राइब करता है, क्योंकि वो ये लिखता है कि आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब एज दे सीम टू मी, कि वो जैसे मुझे दिखाई देते हैं मैं वैसे उनको डिस्क्राइब करूंगा। तो टॉमस मेलरी, मॉर्टे डी अर्थर और फिर जेफरी चौसर जो है, ये हम कह सकते हैं कि इन्होंने अर्लियर वर्जन्स ऑफ इंग्लिश नावल जो है उसको प्रोड्यूस किया, लेकिन दे वर नॉट लेबल्ड एज नावल, रादर दे वर लेबल्ड एज रोमांसेस। तो एपिक के बाद जो प्रोज फिक्शन मशहूर हुई वो रोमांसेस थे। ठीक है। तो चौसर के जो अपना कैंटरबरी टेल्स जो उसने वो लिखी, वो एग्जैक्टली exactly रोमांस की कैटेगरी में आती हैं। और सर टॉमस मैलोरी, मॉर्टी डी अर्थर यानी कि किंग अर्थर की स्टोरीज जो हैं वो भी रोमांसेस के अंदर आती हैं। अच्छा, फिर ग्रेजुअली प्रोज फिक्शन जो वो थोड़ी सी सीरियस नेचर की होती चली गई। ठीक है। और इसी से जो अगला वर्क है वो सर टॉमस मूर का यूटोपिया। ठीक है। यूटोपिया जो है ये भी प्रोज फिक्शन है, कि जो कि एक आइडियल स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब ये जो यूटोपिया और मॉर्टी डी अर्थर, ठीक है, और उससे पहले जेफरी चौसर, इसने जो रोमांसेस थे, यानी कि रोमांसेस इनिशियल वो रोमांटिक और शिवलरिक किस्म की स्टोरीज जो थी वो डिस्क्राइब की जाती थी उनके अंदर। तो इन तीन वर्क्स ने रोमांसेस का सब्जेक्ट मैटर जो था उसको तब्दील कर दिया। सब्जेक्ट मैटर कैसे तब्दील किया, कि ये सब्जेक्ट मैटर जो था ये मेडिइवल रोमांसेस से निकल के, यानी कि वो जो जनाब जंग की कोई एक आइडियलाइज्ड किस्म की स्टोरीज और फिर उनमें लव स्टोरीज एम्बेड करके जो लिखी जाती थी, उसको इन्होंने एक तो रिलीजियस नेचर का बनाया, दूसरा इन्होंने उनको सोशल नेचर का, यानी कि जो आम लोगों की ज़िंदगी है उस आम लोगों की ज़िंदगी को इन्होंने अपने नावल्स के अंदर या अपने पीसेस ऑफ लिटरेचर के अंदर जो है वो डिस्क्राइब करना शुरू कर दिया। अब आप रिकॉल करें तो नावल जो है उसका सब्जेक्ट मैटर जो है वो ड्रामा के साथ अगर हम कंपैरिजन करें तो मेन डिफरेंस ही ये है कि नावल डिस्क्राइब्स लाइफ ऑफ कॉमन मैन। ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो उस टाइम पीरियड का ड्रामा था, इट वाज कंसर्न विद द लाइव्स ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू अपर क्लास ऑफ द सोसाइटी। इसमें किंग्स थे, क्वींस, जनरल्स, यानी कि इस किस्म के जो लोग थे जो कि हु हेल्ड प्रोमिनेंट पोजीशन इन द सोसाइटी, उन लोगों की जिंदगियां जो थी वो प्लेस के अंदर डिस्क्राइब की जाती थी। हाउएवर नावल जो था, इट वाज कंसर्न विद द लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन, आम आदमी की जिंदगी के साथ इसका ताल्लुक था। जब आम आदमी की जिंदगी के साथ इसका ताल्लुक था तो वो रियलिस्टिक किस्म की पिक्चर जो थी वो डिस्क्राइब की जाती थी। अच्छा, अब ये जो 16th सेंचुरी का टाइम पीरियड है इसके अंदर जो फिक्शन प्रोड्यूस की गई, ये फिक्शन जो थी ये रोमांटिक नेचर की थी और ये डायडेक्टिक नेचर की थी। डायडेक्टिक से मुराद क्या होता है, वो चीज़ कि जहाँ पे आपको कोई कोई इखलाकी दर्स दिया जा रहा हो। ठीक है। तो इसमें सर फिलिप सिडनी है, इनका पीस ऑफ लिटरेचर है जिसका नाम आर्केडिया है। रॉबर्ट ग्रीन है, रॉबर्ट ग्रीन का
पेंडोस्टो है, टॉमस लॉज है, टॉमस लॉज का रोजलिंड है, ठीक है। ये रोमांटिक फिक्शन के दायरे कार में आते हैं, ठीक है। और 9064 का कोर्स पढ़ेंगे आप प्रोज का, तो उसमें फ्रांसिस बेकन को पढ़ेंगे आप, ठीक है। जॉन लिली तो नहीं आएगा, टॉमस मूर भी नहीं आएंगे उसमें। लेकिन ये है कि फ्रांसिस बेकन जो है, जो उनके एसेस हैं वो प्योरली डायडेक्टिक नेचर के हैं, यानी कि वो अपने ऑडियंस को कुछ टीच करना चाहते हैं, ठीक है। वो उनके बिहेवियर को, जो उनका एवरीडे बिहेवियर है, वो उस बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है। और फिर अ, अब इसके अंदर जो रियलिज्म की छाप है वो किसने इंट्रोड्यूस कराई, तो वो टॉमस नैश हैं, डेलोनी हैं और डेकर है, ठीक है। अभी टॉमस नैश, टॉमस लॉज, रॉबर्ट ग्रीन, क्रिस्टोफर मार्लो, जॉन लिली, ये जो लोग थे इनका एक खास ग्रुप था, और उस ग्रुप को यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था, ठीक है। ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ 16th एंड 15th सेंचुरी ये ग्रुप काफ़ी एक्टिव था, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा लिखा। ये सारे के सारे लोग जो थे ये यूनिवर्सिटी एजुकेटेड थे, इस वजह से इनको यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था। देवर टोटल 6 इन नंबर। तो ये जो रेनेसां की फिक्शन थी, यानी कि जो रेनेसां टाइम पीरियड है, 16th सेंचुरी, लेट 15th सेंचुरी, इसके अंदर जो ये फिक्शन लिखी जा रही थी, इसको भी हम एंटीसीडेंट कहते हैं, यानी कि प्री फिक्शन, ठीक है। अच्छा, अब हम आज के दौर में जिस लिटरेचर को हम उसको फिक्शन के तौर पे, हम उसको नॉवल के तौर पे रिकग्नाइज करते हैं, और ये रिकग्निशन शुरू होती है पैमेला से, ठीक है। पैमेला है, और उसके रिस्पॉन्स में जो है वो जोसेफ एंड्रयूज लिखा गया था। थोड़ा सा पहले उससे रॉबिन्सन क्रूसो था, क्लैरिसा, टॉम जोन्स, ट्रिस्ट्रम शैंडे। अब ये जो सारे पीसेस ऑफ लिटरेचर हैं, आज जब हम व्हेन वी लुक बैक एट हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश novel, so we term them as novels. However, people living in that time period, they did not use this term, यानी कि वो नॉवल की टर्म उन्होंने इसके लिए इस्तेमाल नहीं की, रादर ये टर्म जो है वो बाद में इन्वेंट हुई। और रॉबिन्सन क्रूसो और पैमेला जो है, यहाँ से हम नावल की हिस्ट्री का हम आगाज़ करते हैं, कि यहाँ से फॉर्मल जो है वो नावल जो है वो आगाज़ हुआ। और जो उस दौर में लिटरेरी क्रिटिक्स थे, ज़ाहिर है आपको पता है कि एक तो वो डिजिटल टाइम पीरियड नहीं था, तो हर एक बंदा जो है वो अपने पर्सपेक्टिव में अपनी बातें करता था। तो उस टाइम पीरियड के अंदर लोग इवन के इस चीज़ को रिकग्नाइज करने के लिए तैयार नहीं थे, कि ये जो जितने भी पीसेस ऑफ लिटरेचर जिनका नाम हमने लिया है, रॉबिन्सन क्रूसो है, पैमेला है, जोसेफ एंड्रयूज है, ट्रिस्टम शैंडे है, क्लैरिसा, टॉम जोन्स, कि ये सारे पीसेस ऑफ लिटरेचर जो हैं, ये एक ही स्पीशीज से या एक ही नस्ल से या एक ही कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं। लोग इस बात पर भी उस टाइम पीरियड के अंदर एग्री नहीं कर रहे थे। तो विद द पैसेज ऑफ द टाइम ये एवोल्यूशन जारी रहा, और जब हम 18th सेंचुरी में आते हैं, जब हम अर्ली 19th सेंचुरी में आते हैं, तो फिर फॉर्मल एक नावल जो है उसको एक रिकग्निशन मिली। तो जब रिकग्निशन एक पीस ऑफ लिटरेचर को मिल गई कि ये नावल है, ये इसकी ये फीचर्स होते हैं, उसके बाद फिर लोगों ने पीछे देखना शुरू कर दिया कि हाँ, इससे पहले कौन सी चीज़ आई जो कि इसी कैटेगरी में फॉल करती है। तो वो फिर जब लोगों ने क्रिटिसिज्म किया, तनकीद की, जायज़ा लिया, तो फिर वहाँ उस उस टाइम पीरियड में, उस फेज में आके हमने डिटरमिन किया कि जी हमने पैमिला से या फिर रॉबिन्सन क्रूसो जो है वहां से हमने जो है वो आगाज करना है नावल का, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट द राइज ऑफ नावल इन 17th सेंचुरी, कि 17वीं सदी के अंदर नावल जो है वो किस तरीके से अरूज को पहुंचा। 16th सेंचुरी इवन के 1600 तक ये जो एमेटरी टेल्स या फिर जिनको हम रोमांसेस कहते हैं, रोमांसेस जो थे ये उस वक्त तक पॉपुलर थे, ठीक है। उसके बाद 17th सेंचुरी के अंदर पिकरस टेल्स जो थी, जो वो सर्वेंटेस का जो नावल है, डॉन क्योटे, उसको फॉलो करते हुए या उसको इमिटेट करते हुए इंग्लिश लिटरेचर के अंदर पिकरस टेल्स जो थी वो इमर्ज होना शुरू हुई। डॉन क्योटे जो है, जो कि सर्वेंटेस ने लिखा, ये उन्होंने थक के लिखा, रोमांस से वो
थक गए कि जिसमें हमें हीरो ड्रैगन्स के खिलाफ लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है जनाब, और वो शिवलरी दिखाई दे रही है और उसमें फाइट है, और ये तो उन्होंने इसको जो है वो आप ये कहें कि मॉक रोमांस जो है वो लिखा, ठीक है। और इन्होंने बड़े फनी स्टाइल में अपने हीरो को पोर्ट्रे किया कि जो कि हीरो है, जो कि एक नाइट है, शिवलरिक नाइट है, लेकिन वो विंड मिल्स के खिलाफ लड़ता है। और इस तरीके से वो लाफ्टर क्रिएट करता है अपने ऑडियंस के अंदर, यानी कि ऑडियंस जो है उसको हंसते हैं, ठीक है। तो सर्वेंटेस का जो डॉन क्योटे है, इट गेन्ड वेरी वाइड रीडरशिप, कि इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ा और यूरोप के अंदर ये काफ़ी मशहूर हुआ। फिर एफ्रा बेन का ओरोनोको द हिस्ट्री ऑफ द रॉयल स्लेव, जो कि 1688 के अंदर लिखा गया था, ये आया। इसको भी बाज़ औक़ात जो है वो फर्स्ट इंग्लिश नावल के तौर पे टर्म किया जाता है, लेकिन ये है कि फॉर्मली इसको जो है वो नावल के तौर पे रिकग्निशन हासिल नहीं है। लेकिन एफ्रा बेन जो है उनको जो एक आइडेंटिफिकेशन मिलती है, वो आइडेंटिफिकेशन इस पर्सपेक्टिव में मिलती है कि शी वाज फर्स्ट फीमेल कमर्शियल राइटर, ठीक है, कि जिन्होंने कमर्शियली लिख कर अपनी रोजी रोटी जो है उसको कमाया, ठीक है। तो इस वजह से जब हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश नावल को देखते हैं तो उसमें एफ्रा बेन का किरदार जो है बतौर वुमन काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है, ठीक है। अच्छा, डिफरेंस जो था, अब आप ये सोच रहे होंगे कि डिफरेंस क्या है, कि ये रोमांसेस थे, रोमांसेस भी कहानियां ही थी, ठीक है, उसमें सुपर नेचुरल क्रिएचर्स आ जाते थे। डिफरेंस बुनियादी तौर पे ये है कि जो रोमांसेस या जो एमेथोरी टेल्स थी, या जो अर्लियर अपना प्रोज फिक्शन थी, इनमें करेक्टर की डेवलपमेंट शो नहीं की जाती थी। इनके एक किरदार जिस तरीके से या जिस अंदाज में शुरू में दिखाया जाता था, वो एग्जैक्टली उसी अंदाज में आखिर तक रहता था। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। ह्यूमन बींग्स दे कीप evolving, they keep learning, and they keep modifying their behavior according to the mistakes that they have committed. तो जो एक नावल का चीफ करेक्टरिस्टिक है, वो एवोल्यूशन ऑफ द करेक्टर है, कि यानी कि किरदार जो है उसके अंदर हमें तब्दीली नजर आती है, कि वो लर्न करता है, वो सीखता है। जॉन बुनियान का नाम है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इन्होंने पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जो था इनका वो काफ़ी मशहूर हुआ। लाइफ एंड द डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन था जो इन्होंने लिखा, ठीक है। ये जो वर्क्स है एफ्रा बेन, सर्वेंटेज और जॉन बुनियान के, ये इस न्यू लिटरेरी जॉनरा जिसको हम नावल के नाम से जानते हैं, ये उससे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते थे। ये रिजेंबल करते थे अपने स्ट्रक्चर में, यानी कि स्ट्रक्चर जो है उनका नावल की तरह था, फॉर्म उनकी वो ज़रा मतलब कि प्रोज फिक्शन में लिखे जा रहे थे, प्लॉट्स से, करेक्टराइजेशन थी, सेटिंग भी थी, और इसमें कॉन्फ्लिक्ट भी था, ठीक है। यानी कि ये सारी चीज़ें इनके अंदर जो हैं ये मौजूद थी। तो अब चूंकि इनके नॉवेल्स के अंदर ये सारे फीचर्स जो थे, जो कि हमने फीचर्स ऑफ इंग्लिश नावल डिस्कस किए, जिसमें स्ट्रक्चर है, फॉर्म है, प्लॉट है, करेक्टराइजेशन है, सेटिंग है, कॉन्फ्लिक्ट है, अब ये चीज़ें चूंकि इनकी प्रोज फिक्शन के अंदर एग्जिस्ट करती थी, इस वजह से इनको फोर रनर्स कहा जाता है, कि यानी कि ये नावल के पेश रो साबित हुए ये जो राइटर्स हैं, जॉन बुनियान, सर्वेंटेज और एफ्रा बेन। अच्छा, एक और जो डिफरेंस है बिटवीन द नॉवल एंड दीज अर्ली रोमांसेस, वो ये है कि जो अर्ली रोमांसेस थे, दे वर डिवाइड ऑफ द रियल लाइफ, यानी कि उनके अंदर रियल लाइफ इंसिडेंसेस, यानी कि रियलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। और ये इंस्पिरेशन थी फ्रेंच और स्पेनिश नॉवेलिस्ट से इंस्पायर होकर इंग्लिश राइटर्स ने ये रोमांसेस के जो जॉनरास हैं इनमें लिखना शुरू किया। लेकिन विद द पैसेज ऑफ द टाइम, ये जो तीन नाम हमने देखे, जिसमें सर्वेंटेस का नाम शामिल है, हालांकि वो स्पेनिश थे, एफ्रा बेन का नाम शामिल है, जॉन बुनियान का नाम शामिल है, इन्होंने इसी फॉर्म को, रोमांस की फॉर्म को मॉडिफाई करना शुरू किया, और इसके अंदर रियलिज्म का एलिमेंट जो था वो लेकर आए, ठीक है। और ये जो रियलिज्म है, यही चीफ करेक्टरिस्टिक है इंग्लिश नावल का, कि इंग्लिश नावल जो होता है वो रियलिस्टिक होता है। तो इनके वर्क्स ने बुनियाद सेट कर दी इंग्लिश नावल की, ठीक है। अब हम 18th सेंचुरी में आते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि 18th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर आके जो नावल है वो अपनी पीक पे पहुंचता है। ये तो 18वीं सदी जो है, इसको हम ये कहते हैं कि इट इज़ द ट्रू ओरिजिन ऑफ नावल, या यहाँ से नावल की फॉर्म जो है उसको रिकग्निशन मिली। इस हिसाब से इयन
वार्ड की किताब है द राइज ऑफ इंग्लिश नावल की, जिसमें वो इंग्लिश नावल की जो हिस्ट्री है, जो ओरिजिन है, उसको अपना ट्रेस करते हैं। और तीन राइटर्स जो हैं, जिनमें डैनियल डेफो हैं, रिचर्डसन है और हेनरी फील्डिंग है, उनको वो इसका ओरिजिनेटर या इसका फादर जो है वो डिक्लेयर करते हैं। और वो ईएन वार्ड ये डिक्लेयर करते हैं कि रियलिज्म जो है, जिस पे हमने ऑलरेडी बात की, कि रियलिस्टिक होना, रियलिज्म जो है वो 18th सेंचुरी का जो नावल है उसकी उसका एक सबसे अहम फीचर है। ठीक है, अब 18th सेंचुरी का वो पीरियड है कि जिस वक्त नावल की एक फाउंडेशन जो थी वो रखी जा चुकी थी, और ये फाउंडेशन जिन राइटर्स ने रखी उनके नामों से आपको वाकफियत हासिल है, जिनमें एफ्रा बेन का नाम, जॉन बुनियान का नाम और डैनियल डेफो का नाम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो बुनियाद रखी जा चुकी थी। जिफरी चौसर, बोकाचियो, उनकी अपनी कंट्रीब्यूशंस थी, और ये लिटरी जॉनरा जो है ये अपीयर होने के लिए बिल्कुल मैच्योर हो चुका था। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो फीचर्स या वो हिस्टोरिकल इवेंट्स के जिन्होंने इस लिटरी जॉनरा के राइज में अपना किरदार अदा किया, उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शामिल है, उसमें इंक्रीज ऑफ लिटरेसी रेशो यानी कि पढ़े लिखे लोगों की तादाद में इजाफा है, और मिडिल क्लास की तादाद में जो इजाफा है, और फिर मोबाइल लाइब्रेरीज आ गई, क्योंकि इससे पहले किताबें जो थी वो हाथों से लिखी जाती थी, और 14th सेंचुरी में जब प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट हुई तो किताबें छपना शुरू हो गई, और किताबों की एक्सेस जो है वो ईजी हो गई। ठीक है, तो उससे फिर ये है कि एक एजुकेशन के अंदर भी इजाफा हुआ, लोगों की जो फाइनेंशियल सिचुएशन थी वो भी इम्प्रूव हुई, तो दे वांटेड टू हैव सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट। अब ये जो सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट थे पुराने ज़माने में, ये वो जो रोमांसेस लिखे जाते थे या जो एमिटोरी टेल्स लिखी जाती थी, वो रोमांसेस जो थे वो ड्रैगन्स की कहानियाँ और सुपरनेचुरल क्रिएचर्स की कहानियाँ और उनके साथ इंसानों की फाइट, वो उस पे मुश्तमिल थी। मिडिल क्लास जो थी वो ये चाहती थी कि उनको वॉइस दी जाए, क्योंकि ये जो नाइट्स वगैरह या जो किंग्स वगैरह थे उनके लिए ये लोग अनरियलिस्टिक थे, क्योंकि इन लोगों तक उनकी एक्सेस नहीं होती थी। ठीक है, सो दे वांटेड कि कुछ उनके बारे में लिखा जाए। तो अपना नावल, जिसका हमने ये कहा कि इसका मेन फीचर या इसका मेन करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका रियलिज्म है। ठीक है, तो जब हम रियलिज्म की बात करते हैं तो असल इंसान की बात करनी है, और जब हम असल इंसान की बात करते हैं तो असल इंसान वो हैं जो कि मेजॉरिटी में, और मेजॉरिटी में मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास होती है। ठीक है, तो नावल जो है ये एग्जैक्टली इसी क्लास की स्टोरीज जो है वो उनको डिस्क्राइब करता था, इस वजह से नावल जो है वो 18th सेंचुरी में आके एक मेच्योरिटी पे पहुंचा, और राइटर्स जो थे उनको एक फॉर्मल रिकग्निशन हासिल हुई, और ये एक कमर्शियल जॉनरा के तौर पे उभर कर सामने आता है। अच्छा, अब जो इस टाइम पीरियड के राइटर्स हैं, रिचर्डसन, मतलब कि डेफो से लेके रिचर्डसन, सब के नामों से आपको वाकफियत हासिल है। ठीक है, फिर जब हम 19th सेंचुरी में आते हैं तो 19th सेंचुरी के अंदर या इवन के 20th सेंचुरी और इवन के आज भी नावल जो है वो इवॉल्व होता चला जा रहा है। इवॉल्व का मतलब ये कि उसके अंदर एवोल्यूशन, उसके अंदर तब्दीलियाँ, उसकी फॉर्म के साथ, उसकी जो नैरेटिव स्टाइल है उसके साथ राइटर्स जो हैं वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कराते हैं। डैनियल डेफो जो है वो उसको फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नॉवलिस्ट के तौर पे जाना जाता है, क्योंकि उसने एक रियलिज्म की टेक्निक जो थी उसको इंट्रोड्यूस करवाया। ठीक है, अच्छा, फिर इसके साथ जो एपिस्टलरी नॉवेल्स यानी कि अक्सात की सूरत में जो है वो छापने का एक सिलसिला था उस दौर में। उस दौर में तीन अखबारात थे जिनमें ये नावल जो थे ये एपिसोड्स की फॉर्म में छपते थे, जिसमें द स्पेक्टेटर, द टेटलर और द गार्डियन के नाम थे। गार्डियन जो है वो आज भी आपको पता है कि छपता है, द गार्डियन के नाम से न्यूज़पेपर है। ठीक है, तो डैनियल डेफो के अलावा सैम्यूल रिचर्डसन का नाम शामिल है। सैम्यूल रिचर्डसन जो है इन्होंने पैमेला लिखा, जो कि लेटर्स की फॉर्म में अखबार में छपता था। ठीक है, यानी कि एपिसोड्स की फॉर्म में, और लोग उसको जो है वो पढ़ते थे। तो ये जो नावल है एक वर्चुअस मेड सर्वेंट जिसका नाम पैमेला है, जो कि जोसेफ एंड्रयूज की सिस्टर दिखाई गई है, वो उसकी स्टोरी को नरेट करता है। ठीक है, उसके बाद जो है अपना पैमेला की कामयाबी के बाद एक और स्टोरी लिखी गई जिसका नाम क्लैरिसा था। ठीक है, और उसके बाद सैम्यूल रिचर्डसन ने इंग्लिश नावल के अंदर सेंटिमेंटैलिटी यानी कि जज्बातियत जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया।
18th सेंचुरी की चूंकि हम बात कर रहे हैं तो 18th सेंचुरी नावल के अंदर दो बड़े नाम रिचर्डसन और हेनरी फील्डिंग हैं। ठीक है, रिचर्डसन का मैंने आपको बताया कि उसने पैमिला क्लैरिसा ये चीज़ें, ये नावल्स जो लिखे। जो इसका दूसरा नाम है वो हेनरी फील्डिंग है, जो कि इसी के अपना पाए का या फिर इससे थोड़ा सा आला किस्म का राइटर था। और फिर इसके बाद जो है वो लेसर नो नेम्स आते हैं, जिसमें लॉरेंस स्टर्न का नाम शामिल है, टोबिस स्मोलेट का नाम शामिल है। ठीक है, तो ये वो लोग हैं कि जिनको हम द फोर व्हील्स ऑफ इंग्लिश नावल के तौर पे जानते हैं, जिन्होंने नावल की लिटरेरी जॉनरा को जो है वो आगे बढ़ाने में अपना किरदार अदा किया। रिचर्डसन ने पैमेला लिखा जो कि एपिसोड्स की फॉर्म में था। हेनरी फील्डिंग ने जोसेफ एंड्रयूज लिखा, और जोसेफ एंड्रयूज जो है उसको लिखा, फिर इसने टॉम जोन्स लिखा, और भी इसने काफ़ी नॉवेल्स लिखे। हेनरी फील्डिंग को फादर ऑफ इंग्लिश नावल के तौर पे जाना जाता है। हेनरी फील्डिंग ने अपने नावल्स के अंदर अपनी थेरी ऑफ नावल जो है वो भी इंट्रोड्यूस कराई। उस थेरी ऑफ नावल को जब हम जोसेफ एंड्रयूज पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि उसकी थेरी ऑफ नावल क्या है। फिर उसका एक अपना आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन है, यानी कि किरदार कशी का एक उसका अपना अंदाज है। रियलिज्म उसने इंट्रोड्यूस कराया जब आप जोसेफ एंड्रयूज की हम कहानी पढ़ते हैं, और उस दौर के इंग्लैंड की जब हम हिस्ट्री को देखते हैं, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमें वो कहानी बिल्कुल जो है वो रियलिस्टिक यानी कि हकीकत पर मबनी जो है वो दिखाई देती है। तनकीद निगार जो हैं, क्रिटिक्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, दे बिलीव कि अंग्रेजी अदब के अंदर जो नावल की राइज है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय सर्टेन फैक्टर्स, यानी कि चंद फैक्टर्स थे उस दौर के, कुछ जो है वो तारीखी हालात या कुछ उस दौर की तारीखी इन्वेंशंस इस किस्म की थी कि जिन्होंने नावल को एज अ लिटरेरी जॉनरा शेप करने में एक अपना अहम किरदार अदा किया। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द राइज ऑफ द नावल। इसके अंदर हम उन फैक्टर्स को देखेंगे कि जिन फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया इंग्लिश नावल की पॉपुलैरिटी में, और इंग्लिश नावल की रिकग्निशन में, और इंग्लिश नावल की रीडरशिप के अंदर जो इजाफा था उसके अंदर इन फैक्टर्स ने अपना अहम किरदार अदा किया।